पहला कॉलेज है जहाँ से आयुर्वेद बायोलॉजी का हमारा पहला रिजल्ट भी आया। डॉक्टर काव्या श्री प्रकाश, वन ऑफ द final year students of this college, grabbed her position securing 97.90 percentile with the very new subject in UGC in Ayurveda biology। आइए आज इस कैंपस का आपको विजिट कराते हैं कि किस तरीके से ये आयुर्वेद चिकित्सालय और ये पूरा संस्थान चलता है और कैसे आगे आपको अपने करियर में एज इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा बायोलॉजी कैसे हेल्प मिलने वाला है। व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी देयर इन दिस फील्ड ऑफ आयुर्वेदा बायोलॉजी। Member of this secretary of so he's the founder secretary, and with me we have Dr. Ranjit with me, and so you are from this country. Senior, so you are the senior RMO here. She is the senior RMO of this college. So you can see Mangat Muralidharan, he is no more, but he was the founder member of this college. And we have some Shankaracharyas. Yeah, we are the institution is coming under the aegis of Sringeri Math. Okay. Karnataka Sringeri Math. So you see Shankaracharya and the aegis of Sringeri Math. So ये जो चिकित्सालय है, ये जो संस्थान है, ये जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये इन शंकराचार्यों के ट्रस्ट के अधीन ही चलता हुआ एक ये कॉलेज है। आगे चलते हैं। ये आपकी फार्मेसी है इस हॉस्पिटल की। मेडिसिन जितने भी आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस, डिकॉक्शंस, टॉक्सिन्स के लिए जो फॉर्मुलेशंस बनाए जाते हैं वो सब यहाँ हॉस्पिटल में बनती है और यहीं से ट्रीटमेंट पेशेंट्स को भी मिलती है और यहाँ से दवाइयाँ भी मिलती हैं। आइए अब हॉस्पिटल के अंदर आपको दिखा। So this is the OPD registration area. Okay. From here in the beginning the patient can take the registration from here. Okay. After that, till now also we are charging only 20 rupees. Only 20 rupees. This is not a consultation. Consultation directly with the doctor. We can take the registration from here. From here, then we will transfer the file into initial assessment room. Okay. There, the junior doctors will be there. From there, the junior doctors consult the patient. They will take the BP, pulse rate, The vitals that yes, right. Everything. Then from there, the condition of the patient, the disease of the patient. The junior तो doctor. आप देख सकते हैं कि जैसे एक एलोपैथी या फिर इंग्लिश हॉस्पिटल्स में, मॉडर्न हॉस्पिटल्स में आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसके बाद इनिशियल असेसमेंट आपके वाइटल्स लिए जाते हैं। सेम यहाँ भी देयर इज नथिंग, देयर इज नो सच मोर डिफरेंस। इन फैक्ट दिस इज द न्यू बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। आयुर्वेदा कॉलेज में भी पद्धति कुछ ऐसी ही है। आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, फिर आपके वाइटल्स लिए जाते हैं इनिशियल असेसमेंट रूम में जहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं, and then the case is transferred to the senior doctors, the respected department doctors। अगर मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूं तो आयुर्वेदा में जैसे आप लोग अलग अलग ब्रांचेस में आप अपने सिलेबस को भी देखोगे तो उसमें काया चिकित्सा, पंचकर्मा, शल्य तंत्रम, शालक्य तंत्रम, प्रसूति तंत्र, कौमार भृत्या, स्वास्थ्य भृत्यम, कैजुअलिटी, ये सब चीजें, अगध तंत्र, ये सारे हमारे डिफरेंट ब्रांचेस हैं इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा और उनके लिए हर दिन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। आप उनके नाम भी पढ़ सकते हैं। So, with respect to individual's disease and individual disorder, the respective faculties come into treatment. So this is our first department, our Panchakarma department. Jin sir is here. Namaskar. So this is our department, and these are HOD for the same department. And sir, I'm the senior professor for the Ayurveda Biology stream of our 24/7, and I'm very proud to say that one of your alumni from your college has secured the position as the first JRF in the country in Ayurveda Biology. Yes, Dr. Kavyas. And so basically, this department is dealing with treatment of general treatment of all Ayurveda procedures is done regarding with respect to massage, detoxification therapies and other. So at present it is technically being guided by some modern equipments, but later on these profiling will also be ensure that it is going to be
depending on that, we will go to that. So, sir, this is what Ayurveda is doing at present. So, my subject, that Ayurveda biology, is what I am dealing with, that will include your Ayurveda part, the treatment that you are doing. We will just be infusing some technology with it, so that in future you can give some personalized treatment for a particular disease as per the need of the patient. So, हमारे साथ ही हमारे प्रोफेसर एचओडी साथ थे. Thank you so much, sir, for being here. And these are the students who are currently studying under PNNM under this field. Let's move to the next department. That basically we are aligned with. We are the surgery department, Shalya Tantra. Dr. Smita Mohan, Dr. Saji KS, Dr. Gees, and Dr. Najma Mansoor is the present professors who are working in the same department. So these are the current house agents of Shalya Tantra. from the Shalya Tantra. So you were also present in the seminar. Yes. So how do you see Ayurveda biology in your subject? At present, the Shalya Tantra and other related terminologies and practices you are doing. But if some technology will be infused with it, do you think the treatment, the method, the efficacy rate, the tenure in which the patient is being diagnosed or treated, that will start increasing? The patient will get a lot of benefit. You as a researcher will also, as a doctor, as a researcher will also get benefit from this. Yes. Yes. So, in upcoming days, would you encourage your practices with the modern technology? Do you think it was much needed, and however when it came, it will enhance our capabilities in our said department? You are working with your department, and if the technology gets infused, do you think it will It would like enhance? enhance it, like efficiency, and also like more Patients- patients would know about it. More patients will know about it, more patients will get treated Yeah. in very less time. Yes. So, all the very best. You are from the same department, Yes. and I hope you all do wonders in the future. Along with the surgery department, sir, here you can see the minor OT. Acha, we have the minor OT as well with the surgery department. So let's see our Shalya Tantra minor OT. Minor OT. Like it all. Since it is the OT, you know the rules. We have to get some basics. Hygiene. So as you can see, this is the minor OT room where all the procedures are being performed with due respects to all the notions and ideas that we learn in the Ayurvedic field. So जैसे कि आप देखते हैं कि मॉडर्न साइंस में भी जिस प्रकार से आम चोट जख्म वगैरह का ट्रीटमेंट जो टाँके वाके दिए जाते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ भी है. बट यहाँ जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो एलोपैथी की जगह यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, जिसकी एफिकेसी रेट बेहतर होती है और पेशेंट्स भी जल्दी ठीक होके दोबारा नहीं आते. So this was our minor OT, and you can see all the equipments that is being. Majorly performing the files cases, fistula cases, Sharasutra cases. अभी आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुना था कि पंजाब में एक डॉक्टर ने 113 सेंटीमीटर के फिस्ट्यूला, जिसे हिंदी में भकंदड़ कहते हैं, उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा से किया था. तो जनरली आप ये सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन थिएटर का क्या काम है. तो यहाँ जो शल्य तंत्र में यानी सर्जरी डिपार्टमेंट में बेसिकली जो ट्रीटमेंट हो रही है उसमें जैसे सर ने बताया कि पाइल्स, फिस्ट्यूला जैसे भयानक बीमारियों का इलाज अभी किया जा रहा है, एंड अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आर बेनिफिटेड बाय द सेम. Daily we have more than 20 or 25 cases in the minor OT. 25 केसेस माइनर ओटी में एवरी डे. तो जहां आप एलोपैथी में सुनते हैं कि पाइल्स का इलाज नहीं है, इन आयुर्वेदा वी आर हैविंग एंड गिविंग ट्रीटमेंट्स टू द सेम. वेरी नाइस सर. So moving out of the minor OT. आयुर्वेद बस कुछ जड़ी बूटियों की ज्ञान है, तो बस ये मत सोचना कि आयुर्वेद में बस जड़ी बूटियों का ज्ञान, शिखाबंधन और साधु महात्माओं की तरह वेशभूषा, यहीं तक आयुर्वेद सीमित है. आई गेस इस न्यू सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के बाद अब
हम आप ही नहीं, अडर 24/7 के माध्यम से पूरा देश जानेगा कि आयुर्वेद की शक्ति, आयुर्वेद की काबिलियत आज मॉडर्न साइंस से मिलने के बाद क्या होने वाली है फ्यूचर में, आइए जानते हैं। You can see the procedure. So this is the gynecology and obstetrics department जो हम modern science में कहते हैं, उसी को आयुर्वेद में प्रसूति है स्त्री रोग डिपार्टमेंट कहते हैं। So here also you can see some house agents working. They are from the same department, obstetric and gynecology, right? Prasuti. So how are you all? Enjoying studying? And were you in the seminar? Were you in the seminar? So whatever you were studying in Ayurveda, if I will add some technology to it, do you think you will treat your patients better in less time? So I think you will be the future in this field. Congratulations, all the best. And do stay connected with our channel so that you can get updates about me and all the information that you need for your future. Thank you. Now we have the gynecology department also. We have a minor OT. for gynecology and obstetrics. We have, आप जानते ही हो कि कोई गर्भवती होगा तो बच्चे को निकालना भी पड़ेगा, इम्प्लांटेशन के बाद पार्चुरेशन ही होता है, तो for parsurition some minor OTs are also there to Nowadays in Kerala, we are not used to perform the delivery. Because we are not supposed to perform the delivery. But we are doing that Tharavasti like procedures, training like procedures, everything we are doing. Okay. तो since अभी IMA की तरफ से कुछ ऐसे restrictions होंगे या फिर केरला गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे restrictions हैं कि as an Ayurveda practitioner, till you don't become an MD in the same or MS in the same, if you don't have the practice or expertise in the same department, you cannot perform the deliveries, parturitions. So basically what they are doing is, apart from the parturition process, बच्चे के गर्भ से निकालने के बाद जितनी भी जो विधियां हैं, उन सारी विधियों को यहाँ टेक केयर किया जाता है। And that is much important, the post-parturition process. Prenatal care, postnatal care. So this is the living room. And this is the Kaumarvidya, the pediatrics department. In medicine we call it the pediatrics department. We have some house agents working for the same team. And you are also a house agent working in the same team. So you are going to be the upcoming Indian Ayurvedic pediatricians, right? Were you in the seminar? So do you think science, modern science, the technology, the tests, if they get added to your course, your rate of treating patients will increase, the efficacy rate will increase, patients will get treated very easily? How do you see this subject for you as well as the upcoming aspirants in future? So we have some limitations considered to technology wise. So I think with respect to this, like what you have said, I think we can incorporate that and we can do the treatments in a much better way. And with what we call best results and fast results, I think. As you told, like we can focus on the drug potency or about a specific chemical or anything that is focused. For a specific body. For that we can take. For us, we use some drug for the specific treatment, no? So we can concentrate on the chemical basis of that drug and we can incorporate it into ourselves. So initially the way or the method that we use is, generally we are prescribing a medicine for a particular disease. But now with the advent of Ayurveda biology, क्या नया होगा? तो नया यही होगा कि हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति विशेष के लिए उसके शारीरिक क्रिया रचना संरचना के आधार पर उसकी मेडिसिन हम दे पाएंगे। The same I am repeating it in English. If a person is affected by a specific disease with this modern science, the same departmental heads will now bring out a different approach in treating that individual with a personalized treatment. Am I right? So this is the future, right? And I hope you all become one of the leading faces in the country. Congratulations and all the best. Thank you. Just stay connected to our channel, UGC Net 24/7. Any updates regarding my subject or anything you need to ask, just stay connected to your teachers as well. They will connect it to you. Agada Tantra department. Yes. So, Agada Tantra, we have only one aspirant here. How are you doing now? Were you in the seminar? Yeah, it's also. So, you were in the seminar I was taking? No, you were. Yeah, she's not at it. Okay, you were not at the seminar. So, have you, do you have an idea about the new subject introduced, Ayurveda biology? Any idea?
So there is a new subject being introduced by the government, and that is generally to spread awareness that Ayurvedic students are not just related to Ayurveda only. All those diseases in modern sciences which is not being treated, which is not having a remedy, now with the help of Ayurveda and adding some technology to it, that is the modern applications, those diseases can be be nullified with the help of Ayurveda sciences, and that particular stream is now Ayurveda biology. And now people like you people can get such examination and make your career as a JRF, Junior Research Fellow. And you can work with CCRS, that's 7,000 for research in Ayurvedic studies, Indian Institute of Ayurveda. In fact, you can get incorporated by the AIIMS as well. One student from Kerala itself, Dr. Ponnu Krishnan, she is now working with AIIMS and treating cancer patients with the help of music therapy. You practice that in Ayurveda, but once it gets infused with the modern applications, it's a miracle. And I just wish you all the best in your department, that very soon, once you know about this subject, I believe in coming future you will also choose the subject for the same, increasing your efficacy and treating your patients with much more. ये बहुत बड़ी बात है कि इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, इट इज अ मेडिकल कॉलेज, ट्रीटमेंट भी रोजाना यहाँ होती है। इसलिए मैं सारे डिपार्टमेंट्स भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि हर वो बच्चा जो इस नए सब्जेक्ट से जुड़ना चाहता है वो उसको पता भी चले कि आगे क्या क्या वो कर सकते हैं। अभी एक खास बात मुझे सर से जानने को मिली, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई भी बंदा किसी एक पर्टिकुलर डिजीज से आता है तो 3 दवाइयाँ, 3 medicines, one body oil, one arista and one tablet. So these 3-4 items is given free of cost for 2 weeks from this academy. तो यार देखो, जो कहते हैं ना कि विश्व गुरु हैं हम और सबकी देखभाल करते हैं, जो मैंने सेमिनार पे भी कहा था, वसुधैव कुटुंबकम, उसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी ये हॉस्पिटल सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये आप पूरी फार्मेसी डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, एंड ये सारे फ्री मेडिसिन्स भी हैं, आप देख सकते हो। अमृत चूर्णम, we are serving these medicines as kashaya churna. कषाया चूर्ण, So the patient can also use it easily, and they can boil in particular quantity of water and they can have this kashaya. okay, and this is initially given free of cost for 2 weeks. For 2, and 2 they weeks. can repeat that too. If the Right. condition, the symptoms are seen, they can repeat the medicine. You can see Astavargam, we have 7 or 8 varieties of kashayas are there. We have 2 varieties different types of kashayas are there. We have 2 varieties of body oil is there. These are the body oils. Yeah. We have arista and budigas. And these are the different creams, medicated creams. Kashaya churna. Kashaya churna. And one more specialty is that our mother institution is named as Kerala Ayurveda Samadhi, from 2 kilometers apart from here. That's the world's first Ayurvedic hospital. World's first Ayurvedic hospital, and that's our hospital. That's our mother institution. That's Mother Institute of PNNM. तो बहुत बड़ी बात देखो एक और पता चली। तो sir, I'm feeling much more special with every hour passing by and speaking to you. तो अभी तक तो मैं इस बात का ही गुमान कर रहा था कि देखो, पहली बार मैंने एक ऐसे कॉलेज से एक बच्चे को सिलेक्ट करवाया जहां आयुर्वेद के ऊपर काफी सारे रिसर्च हुए। लेकिन अभी एक और बात जानने को मिल रही है सर से कि हमारी जो पेरेंट हॉस्पिटल रही है, दैट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आयुर्वेदिक कॉलेज, Started in 1902. 1902। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ बच्चों कि अगर आप भी अपनी करियर आयुर्वेद के फील्ड में रखना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि आयुर्वेद पढ़ने वाला एक संत महात्मा होता है और बैठ के मंत्र और चूरन बांट रहा होता है। A far lot has been increased, and this is the modern science. This is the modern Ayurveda. This is the future of science. And आगे जब इसमें biology infuse हो जाती है तो कहाँ जाएगी? That is going to be the future. As a medical college, we are also running so many researches. Here you can see some research medicines over here, and we are और doing जिसके ऊपर आयुर्वेदा बायोलॉजी हमारी फोकस करती है, दैट इज रिसर्चिंग एंड मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स। एज ऑफ नाउ इस कॉलेज ने ही
Meta Rebalance and different formulations. Demicap oil, we can see Brahmi, Avane Kanna. This is for diabetics and infertility and diabetes and infertility. तो ये सारे किसी और हॉस्पिटल के नहीं है, ये इस हॉस्पिटल के द्वारा बनाया गया है, यहाँ के रिसर्चर्स के द्वारा बनाया गया है। तो आप एज एन आयुर्वेदा बायोलॉजिस्ट करोगे क्या? अभी जैसे ये एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए दवाई बना दी गई है ना, यू एज अ रिसर्चर, यू एज अ आयुर्वेदा बायोलॉजिस्ट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, उसके अंदर मचे एनोमली डिजीज के आधार पे पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स दोगे, और वो अपनी भारत की निजी धरोहर है, निजी पूंजी है। तो सर आई एम जस्ट फैसिनेटेड टू नो अ लॉट दैट इज आवर ओन इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये हमारे भारत की अपनी मूल जायदाद है, जिसको शायद सदियों से किसी ने नहीं ज्यादा समझा टटोला। ये तो हमारे कुछ पूज्य ऋषि शंकराचार्य वगैरह थे जो इसको खोज के आज यहाँ तक ले पाए। एंड आई वुड जस्ट I have no words for those founders who have given their wealth, health, everything to set up such prestigious institutions, जहां आज हजारों के तादाद में रोज नए आयुर्वेदिक researchers and practitioners पैदा होते हैं। That's along with this, as we all know that in modern medicine, but in Ayurveda, we are also performing with Ayurveda, the veterinary Ayurveda. अभी तक शायद लोगों को यही लग रहा था कि वेटनरी साइंसेज, एनिमल साइंसेज जो है वो सिर्फ एलोपैथी के साथ ही है। अब सर का ये कहना है कि सिर्फ आयुर्वेदा हमारे इंसानों की ट्रीटमेंट तक ही नहीं अब सीमित रही है, अब वेट यानी जानवरों और मवेशियों के लिए भी अब दवाइयाँ पर्सनलाइज्ड बनाई जा रही हैं। Let's see that department. IP department. मैं बात करूं तो how many students are there in house? We have 60 students in the batch, 5 batches, 300 plus research students are already doing research in this field. और अच्छी बात ये है कि इस कॉलेज के पास अपनी ओन कैंटीन है, इन हाउस रहने का सारा अरेंजमेंट्स वगैरह भी है, एंड एवरीथिंग इज बीइंग वेल मेंटेन्ड बाय दिस कॉलेज। तो केरला ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी से लिप्त नहीं है, और बस यूं मत समझिए यूट्यूब के कुछ वीडियोस को देख के कि यार केरला में बैक वाटर्स और वहाँ पे ऊटी और कर्नूल बस घूमना है और केरला की लुंगी बस फेमस है। केरला इज मच मोर फेमस फॉर दोज एंशिएंट जवाहरात, मैं कहूँगा ये सब वो अनमोल हमारी पूंजी है जिसको शायद सदियों से उतने अच्छे से नहीं टटोला गया। लेकिन आज की ये सरकार, आज के जो जितने नए नए रिसर्चर्स, जितने नए व्यक्ति आके इस नए सब्जेक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो अपने में बहुत बड़ी बात है। और इसका साफ साफ प्रूफ आप मेरे साथ देख भी रहे हो कि लग तो रहा है कि ये कोई हॉस्पिटल है, लेकिन ये हॉस्पिटल एक मेडिकल हॉस्पिटल नहीं, इट इज एन आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आइए और कुछ दिखाता हूँ, नया दिखाता हूँ। So you can see 100-bedded hospital. Can you see? You can see our female general ward over here. So this is our female general ward. महिलाओं के लिए ये पूरी विभाग यहाँ पे है। तो since it's the female ward, I don't want to enter. लेकिन आप समझ सकते हैं यहाँ पे सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लिए जो जितने भी महिला रोगी हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। This is our nursing station. All those staffs are here. They are working. एक बार हाय कह दो कैमरा पे। So this is the medicine dispensing area जहाँ medicines को बना के कितने रेट पे, किस मात्रा में, किस अनुसार, कितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे बनाई जाती है। You can see this. In our hospital, those patients, those who are admitted over here, will not give the bottled kashaya or the medicines. Whoever are admitted, the patients who are admitted, they are not having bottles. No, we are preparing the kashayas on the daily basis. Individually. That means you are personalized. You are creating personalized medicines for those. तो जिसका आयुर्वेद, जिस बात पर आयुर्वेदा बायोलॉजी बेसिकली फोकस कर रहा है, उसके ऊपर कार्य पहले से चालू हो चुका है। यूं समझ लो
क्योंकि जनरली आयुर्वेद में होता क्या था कि एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई एक दवाई दे दी जाती थी। यहाँ पे सर वो बता रहे हैं कि अगर कोई एक पर्सन किसी एक एलिमेंट, किसी एक रोग के लिए भर्ती हो रहा है यहाँ पे, तो उस व्यक्ति विशेष को डायरेक्टली ऐसे दवाई दे दी जाती। उसे जब भर्ती किया जा रहा है तो रोज ऐसे फॉर्मुलेशंस खुद मैम और जो रिसर्चर्स हैं वो बनाते हैं और फिर उनको दिया जाता है, एंड डे बाय डे we are preparing it. And you can see we will dispense those medicine, prepared medicine in this bottle. We will write down the patient name, the medicines and the ingredients also here, and the time, the room number, everything. Then the nurses will dispense this medicine. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो दवाइयाँ है ना, ये इंडिविजुअल जो पेशेंट इन हाउस अभी भर्ती है, उनके नाम, उनका वार्ड नंबर, उनका बेड नंबर, क्या ये बनाया है, किस तरीके से खाना है, किसके साथ खाना है, किस टाइम पे खाना है, ये सारी चीजें बना के दी जा रही हैं. And I salute you all. I salute you all. You are doing a lot for the same. And only thing which I would say कि ये this was our property, जिस पे काम हम बहुत देर से कर रहे हैं. We are working very late on it. Otherwise, Ayurveda was ours since time immemorial, 6,000 long years back. But the Britishers worked more on allopathy, and allopathy is spread across India. But I think in the upcoming times, Ayurveda will be the only medicine that will be spread across India. Believe me. Thank you. And these are the individual rooms. Individual rooms. I'll show you one treatment room. ये सारे आप बेड्स देख सकते हो, ये सब पेशेंट बेड्स हैं, इंडिविजुअल. These all are patients who are admitted for different areas. और अच्छी बात ये है कि लोग ठीक हो रहे हैं. लोग कहते हैं कि बस किसी बीमारी के लिए अगर निजात चाहिए तो आप एलोपैथी में चले जाइए. अब सारी चीजें खुल के हो रही हैं और हर चीज का इलाज भी चल रहा है. आप देख सकते हो कितनी बड़ी हॉस्पिटल है. और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो ये समझ लेना कि आने वाले भविष्य में जिस आयुर्वेद को बस एक पुरानी पूंजी के रूप में देखा जाता था, अब बस वो एक पुरानी पूंजी नहीं, आने वाला भविष्य है जिसके आप एक बड़े स्तंभ बनने वाले हैं. I'll show you one treatment room. तो आइए एक ट्रीटमेंट रूम भी देखते हैं. पंचकर्मा थिएटर. पंचकर्मा इज बेसिकली जो जनरल मेडिसिन होती है ना, This is the classical treatment room of an Ayurvedic तो एक आयुर्वेदिक बेड कैसा होता है. आपने मेडिकल बेड तो बहुत देखा होगा, अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए बेड देखिए आप. This is called Pati. This is called party. Pati. This is a bed which the patient will lie down. We will do the procedures like Abhyanga, the massage, the potteries like procedures. The patient should lie down on this particular bed, and this particular bed is prepared with the medicated wood. अच्छा, the wood is medicated. तो देखो, जिस भी व्यक्ति की ट्रीटमेंट यहाँ होती है उसको यहाँ लेटना पड़ता है. देखो वहाँ हेड रखने के लिए वहाँ पर डिप्रेशंस भी बनाए गए हैं. और इस बेड की खासियत कोई स्पेसिफिक लकड़ी की वजह से नहीं है कि ये सेदार वुड का है या फिर सीसो का है या सागवान का है. ये लकड़ी ही चिकित्सीय है. इट इज मेड अप ऑफ मेडिसिनल वुड. इसके पास चिकित्सीय गुण है. इसी के ऊपर बैठा के, लिटा के, उन तेलों से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, मसाजेस एक्सेट्रा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे निवारण मिलता आ रहा है और आगे भी मिलता है. आई एम सो प्राउड टू सी ऑल दिस थिंग्स. आयुर्वेदा हॉस्पिटल का रूम भी दिखाता हूँ, पेशेंट्स रूम कैसा होता है. तो आप ये मत सोचना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है तो पता नहीं कैसी ही होगी. मैं आपको आज एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल के बेड्स भी दिखा देता हूँ. ये एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल का पेशेंट रूम है. जैसे 2 बेडेड रूम होता है ना, तो ये 2 पेशेंट्स के लिए रूम है. खाने के लिए टेबल भी लगाया हुआ है, विजिटर्स के लिए यहाँ पे बैठने के लिए, या फिर पेशेंट्स भी यहाँ बैठ के अपने टाइम पे अपनी वो कर सकते हैं. वहाँ यहाँ वॉशरूम है. तो दिस इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ अ रूम जहाँ पेशेंट्स भर्ती होते हैं अपने इलाज के लिए. क्या कहते हो यार? इज इट नॉट बेटर देन आवर मॉडर्न हॉस्पिटल्स? मच मोर बेटर. We are treating the patient with yoga also. Okay. We are incorporating yoga for particular diseases according to the condition of the तो patient. मोदी जी ने तो योगा दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की खोज भी की थी. अब आप सर से ही सुन रहे हो कि 4th फ्लोर पे, इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पे रोजगार की जिंदगी में कम्युनिटी मेडिसिन 2nd ईयर MBBS में पढ़ाया जाता है. उसमें जनरली हम उन बीमारियों का इलाज करते हैं जो रोजगार में समाज में होती हैं, आम व्यक्तियों को बीमारियां. तो आम व्यक्तियों को होने वाली बीमारियों के लिए भी
योगा के साथ सम्मिलित करके इस हॉस्पिटल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिकित्सा यानी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है। कैसे? लेट्स सी द डिपार्टमेंट। Here you can see इट इज कॉल्ड द फिटनेस एंड योगा सेंटर। you can see more interesting things. Not only yoga, we have a very beautiful fitness center. सो कैन यू बिलीव कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि हम एक आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में, देख के तो ऐसा लग रहा है कि वी आर इन अ जिम, बट दिस इज वेयर पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड। एंड यहाँ जिम ट्रेनर नहीं भाई, यहाँ पे वी हैव योगा एक्सपर्ट्स, वी हैव ट्रेन्ड डॉक्टर्स लाइक दिस, जो इन सारे इक्विपमेंट्स पर पेशेंट को उनके बीमारी के अनुसार जिस जगह पे जितने हिसाब से मसल को मोड़ना है उस आधार पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ऐसे ही लोग केरला आके ठीक नहीं हो रहे हैं। और मैं तो बस इतना चाहूंगा कि केरला ही नहीं, पूरे भारत में ये पद्धति और ये ज्ञान का विकास होना चाहिए। इट मस्ट स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड इंडिया शुड होल्ड इट्स एग्जिस्टेंस फॉर इट्स एंशिएंट नॉलेज व्हिच इज आयुर्वेदा। And there must be some trainings and yoga. This is the yoga hall. देखिए कितना बढ़िया है एरिया। मतलब सुबह सुबह अगर यहाँ पे योगा प्रैक्टिस हो रहा होगा तो प्रकृति के वादियों में सी द बायोडाइवर्सिटी ऑफ केरला। केरला के आप इस पूरे बायोडाइवर्सिटी को देख सकते हो। यहाँ दूर भरे जंगलों के बीच में और जड़ी बूटियों से भरे इन जंगलों के बीच में यहाँ पे योगिक टॉप फ्लोर। ओके, तो आप आओ, मैं आपको छत से इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ। इस कॉलेज और इस कॉलेज के आसपास केरला के बायोडाइवर्सिटी का एक थोड़ा सा ऐसा open terrace. Okay. We arranged it for the patients. Those who are treated over here, they can go in the evening time over there and they can relax over there. If they want to practice yoga themselves, they have enough space on the top open terrace and they can sit down there. They can read books and they can relax over here. The enough patients. Okay. We arrange this open terrace for the patients. Those who are treated over here, they can relax over here in the evening time. You can see the beauty of this place. So, देखो यार, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को मैंने भी देखा है, आप सब ने भी देखा होगा, लेकिन इस हॉस्पिटल की एक सबसे खास चीज ये टॉप टेरेस है। और इस टेरेस की सजावट देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि आप एक वन में ही हो। सर का ये कहना है कि पेशेंट्स जो इन हाउस हमारे पेशेंट्स हैं, जो किसी ना किसी बीमारी की वजह से इस हॉस्पिटल में आए हैं, भर्ती हैं, इलाज कराने के लिए आए हैं, उनको यहाँ छूट है, प्रोवाइडेड कि वो चल फिर पा रहे हैं, नहीं तो कोई असिस्टेंस के साथ भी उनको ऊपर आने की छूट है। और यहाँ आके वो प्रकृति के बीच इस सुनहरे एहसास को लेते हुए योगा प्रैक्टिस, सोना उठना बैठना सब कर सकता है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम, शाम को या सुबह के टाइम में। एंड दिस इज हाउ यू गेट हील्ड हियर। इस तरीके से ही लोग यहाँ ठीक होते हैं। अब मैं एक बार चाहूंगा कि आप पूरे एरिया को एक बार हमारे लोगों को भी दिखा दें कि दिस इज what Kerala is. This is also the importance of Ayurveda when we are comparing the Ayurvedic science with other medical science. It is the nature that is working its because role. The Ayurveda have the mode of treatment, like not only for the physical health, it's also for the mental. Yes. So we need the mental health of the patient for the physical better. तो जैसे कि आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर सर से, सर का यही कहना है कि जैसे आयुर्वेद फोकस करता है शरीर का मन और आत्मा से मिलन, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। तो उनका ये कहना है कि सिर्फ ट्रीटमेंट्स टेक्निक्स ही काम नहीं आते, एक स्पेसिफिक वातावरण का भी एक प्रभाव पड़ता है। और ये केरला की बायोडाइवर्सिटी की खासियत है कि यहाँ आने के बाद यहाँ की आबो हवा, यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ की पद्धति, यहाँ का माहौल उन लोगों को जल्दी ठीक करने में बहुत सक्षमता भी प्रदान करता है। और सर व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर? ये नदी कोई है ना शायद, नीला नदी है। जैसे आपने इजिप्ट में नाइल रिवर को सुना होगा, ये केरला में नीला नदी बह रहा है। दिस इज द बिगेस्ट रिवर इन केरला। और क्या व्यू है, आप देख सकते हैं। एक छोटे से ब्रिज के ऊपर एक ट्रेन भी गुजर रही है, बहुत बढ़िया, आप देख पा रहे होंगे। एक छोटी सी ट्रेन भी गुजर रही है उस नीला नदी के ऊपर। यू कैन सी द कोकोनट ट्रीज और कितने छोटे छोटे क्वार्टर्स वगैरह भी बने हुए हैं। वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ द केरला। एंड यहाँ से हाउ फार इज द ओशन एंड अरेबियन सी? maybe 60 kilometers. 60-70 किलोमीटर पे सागर और महासागर भी आपको मिल जाते हैं। एक तरफ अरेबियन सी और नीचे चाहिए तो आपको पश्चिम महासागर, भारतीय हिंद महासागर भी मिल जाता है, इंडियन ओशन।
On this side, you can see beautiful temple over here, Shiva temple. और आइए अब अपने प्रभु का भी साक्षात्कार करवाता हूँ। सर कहते हैं कि दूसरी तरफ, एक तरफ प्रकृति की अनूठी व्यवस्था देखने को मिली, दूसरी तरफ एक प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर भी है, ये शिवा टेम्पल है। तो ये जो छोटा सा आप हट टाइप देख रहे हो, दिस इज नॉट अ हट और अ घर। केरला में लगभग आप जितने भी, जैसे ये हॉस्पिटल्स भी देख रहे हो, इस हॉस्पिटल्स का निर्माण जो है वो इस तरीके से, केरला में लगभग आपको सारे घरों का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। और ये जो देख रहे हो ना छोटा सा एरिया नीचे में, दैट इज अ एंशिएंट शिवा टेम्पल, बहुत ही पुराना प्राचीन शिव मंदिर भी। तो यार पूरे अगर तरीके से अगर आप देखो ना इस पूरे लोकेशन को, तो एक तरफ खुद देव मौजूद हैं, एक तरफ प्रकृति मौजूद है, और एक तरफ उस परंपरा को निभाते हुए ऐसे विद्वान भी मौजूद है, तब आके रोगी यहाँ ठीक होता है। तो आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ये शाखा आयुर्वेद बायोलॉजी सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, पूरे इस शरीर का मन, आत्मा और शरीर के साथ मिलन करा देता है, एक प्रॉपर सिंक्रोनी बना देता है, और तब जाके ये पूरी मेटाबॉलिक सिस्टम काम करती है। तो आज तक तो हम ये रटते आए हैं, पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, सुनते आए हैं, सुनाते आए हैं। आज मैं लाइव आपको ये दिखा रहा हूं कि हाउ डू आयुर्वेदा गेट इट्स रियल एसेंस फ्रॉम। देख रहे हो ये एकेडमिक डिपार्टमेंट, अभी तो मैंने आपको हॉस्पिटल दिखाया था, तो ये हॉस्पिटल आप देख चुके हो। एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी एकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पे आयुर्वेद के बारे में सारे रहस्य संजो के वर्षों से, सदियों से छुपाया रखा गया है। उनके कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों को भी मैं आपको दिखाऊंगा जो सुसज्जित तरीके से यहाँ व्यवस्थित है। डॉक्टर रतीश इज हियर विद अस। हमारे साथ सेमिनार में भी आपने इनको देखा। एंड सर काय चिकित्सा डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। So it was really wonderful. I just visited the hospital and etc. People have a generalized idea of Ayurveda, but I think if they will see this shoot, this video, then they will understand where is Ayurveda now, and where can this new subject as well as the practitioners involved in this can move ahead. Because I think there is a general concept between the normal people that Ayurveda is all about those saints who was giving bhabhutis and bhasmas and nothing happened. But I guess इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के इस वीडियो में आप देख सकते हो। ऑपरेशन से लेके हर चीज किया जा रहा है, और बस इसमें कुछ टेक्नोलॉजी मिलने दो, आने वाला भविष्य भी बहुत उजागर है। So sir, I'm just seeing the library once because I think that's the eminent part of our Ayurveda. देखो जैसे हॉस्पिटल्स में आपके ब्लड कलेक्शन सेंटर्स वगैरह होते हैं, यहाँ भी सारी वो सीबीसीज जैसे हम लेते हैं ना, वो सारे आप यहाँ भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग, मार्टुक्स टेस्ट की बॉडी सीमेन एनालिसिस, स्टूल रूटीन, ओपन ब्लड, बीडीआरएल, दैट इज वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक, तो हर चीज की टेस्ट हो रही है यार। ऐसा आप नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आयुर्वेद में बस वो मंत्र पढ़ गए और नाड़ी खींच रहे हैं और वही सब चल रही है। नहीं, वो पुरानी बातें खत्म। The most precious part I am entering into, संग्रहालय, ग्रंथालय जिसे आप कह सकते हो। This is पुस्तकालय, लाइब्रेरी में हम एंटर कर रहे हैं, आयुर्वेदिक लाइब्रेरी, the first in my lifetime, आपके लिए भी नया होगा। Hello ma'am, so we have the librarian here of this college PNN, and शायद इन जैसे व्यक्तियों की वजह से ही आज भारत की पूंजी, ये हमारी पूंजी ही है जो आज तक संभाली गई है, और बच्चे इनका अध्ययन भी रोज कर रहे हैं। They are studying. We have a very huge collection, more than 14,000 books are here. तो we are having more than 14,000 books अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे। मैं इन किताबों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, मैं आपको दूर से ही दिखा देता हूँ। ये सारे आइए, तो आप देख सकते हो डिफरेंट सेक्शंस के, मतलब वेदर इट इज फैमिली मेडिसिन, वेदर इट इज कार्डियोलॉजी, वेदर इट इज सर्जिकल टेक्स्ट, वेदर इट इज द थेरेपीज, वेदर इट इज द बायोकेमिस्ट्री पार्ट।
Here you can see the descriptions ओके on the each row. Cardiology is there, तो medicine, mind. मुझे अब सर की मदद से अच्छी बात है कि मुझे हर एक बुक पढ़ के नहीं दिखानी पड़ेगी। यू कैन सी द लेबल है कार्डियोलॉजी, नर्सिंग, माइंड, ब्लड, काउंसलिंग, पुराण और वेद भी यहाँ रखे हुए हैं इस तरफ में। जितने भी हमारे प्राचीन पुराण और वेद थे जो शायद अब लोगों को देखने को ना मिले, वो सब भी यहाँ सुरक्षित संयोजित हैं यहाँ पे। Apart from that, disorder therapy, respiratory, homeopathy, radiology, biochemistry, neurology, massage and exercise. There we have psychology and diseases. Similarly, आप यहाँ देख सकते हैं genetic, healing, first aid, acupuncture, immunology, drug, diabetes, cancer की treatment, प्रसूति that is obstetrics and gynecology, Kaumar Bhrityam that is the pediatric department, Shalakya Tantra going into the ENT department, Shalya Tantra going into the surgery department. This is CCRS, Central Council for Research in Ayurvedic Studies. तो यहाँ पे रिसर्च के सारे पेपर्स भी आपको फॉर्मुलेशंस भी मिल जाएंगे। शल्यतंत्रम है, that is the general surgery part, orthopedics, then we have शल्यतंत्र काय चिकित्सा related to skin and all, माइक्रोबायोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट्स ही हैं भाई जो आप मॉडर्न बायोलॉजी में पढ़ने वाले हो, उससे रिलेटेड भी सारी किताबें। और पहले की जो हमारी पुराणों में, वेदों में इनका जो बखान था, हमारे पुराने वेद ऋषियों का जो आकलन था, संकलन था, उसको आज भी समाहित सुसज्जित करके ये कॉलेज रखी है और इसका अध्ययन करा रही है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से इस कॉलेज से ही मैंने अपने सिलेक्शन की शुरुआत करी है और आगे आने वाले दिनों में सिर्फ यही कॉलेज नहीं, भारत का हर एक आयुर्वेदिक कॉलेज इस भारत की ही इतिहास को नहीं बल्कि बीमारी और कई सारी समस्याओं से लिप्त भारत की जनसंख्या को भी सुधार देने वाली। लाइब्रेरी इज नॉट टू शाउट, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो दिस इज वेयर पीपल सिट एंड स्टडी दोज एंशिएंट नॉलेज, वो पुरानी जानकारियां जो शायद आपको कहीं और ना मिले। अब डिजिटल लाइब्रेरी और मैं कुछ खास दिखाना चाहता हूँ, ये शायद आप कहीं और ना देख पाओ। Here you can see the ancient books. ये प्राचीन वो किताबें हैं जिन्हें संभाल के रखा गया है। It is written in the palm leaves. और ये पाम लीफ जो ताड़ की पत्तियां होती हैं ना, उसमें लिखा हुआ है, आप एकदम देख सकते हो। All these are the ancient Malayalam. The language is ancient Malayalam. It's very difficult to read. All these are the Ayurvedic books which is written. आप देख सकते हो ये हर एक समस्या और उनके निदान के बारे में बखान है। ये प्राचीन मलयाली भाषा में इसको लिखा हुआ है। ये सारे पाम के लीव्स हैं, ये पेपर नहीं है, ये पाम के लीव्स हैं जिसपे ये सारी And चीजें। it's also written with, not written with the pen. Pen it's or all ink. written with the knives. ओके, दिस The इज sharp edges of the knives. और क्या आप सुन रहे हैं सर ने क्या कहा कि इन चीजों पर जो आप देख रहे हो, ये हाथों से लिखा गया कलम में भर के स्याही नहीं है जो इसके ऊपर उठ रहा है। ये धारदार चाकू से छोटे छोटे तरीके से, सुसज्जित तरीके से इन नक्काशियों को बनाया गया। और ये नक्काशियां हैं क्या? ये सारी चिकित्साओं की पद्धति हैं। ये सब हमारी पुरानी नॉलेज है जिसे संभाल कर, सर इसका बड़ा श्रेय इस कॉलेज को भी जाता है। जो ये सारे मतलब दिस क्रेडिट गोज टू दिस कॉलेज एंड यू पीपल जिन्होंने इसको संभाल के रखा है। ये हमारी वो पुरानी धरोहर है जिससे आगे इतिहास रचने जा रहे हैं। And it's very difficult. और एक ही नहीं है, आप देख सकते हो कई सारी किताबें हैं। मैं हर एक अपने पुराने ग्रंथों को छूना नहीं चाहता, ये सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। And it's very difficult to read. For nowadays, the students can read this. For that, we decoded this all language, and we did it like this. So what sir is saying is कि अब चूंकि आप देख सकते हो कि इसको बार बार अगर कोई खोल के रोज पढ़ता भी है, छेड़छाड़ भी करे तो टूट भी सकता है, फट भी सकता है। दूसरी बात, टूटे फटे ना भी तो ये पढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतने सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखा गया है कि शायद आज के बच्चों को एक बार में समझ में आना या पढ़ने में शायद दिक्कत हो। इसलिए जो हमारे कॉलेज के एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे पुराने विद्वान हैं, उन लोगों ने इन्हीं चीजों का डिकोड करके सीडीज में कन्वर्ट कर दिया है। तो टुडे दिस कॉलेज इज आल्सो होल्डिंग अ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटलाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर प्रेजेंट, जिसको आप
इनको बिना छेड़छाड़ किए डायरेक्ट इन सब सीढ़ियों से उन सारे वेद ग्रंथों का ज्ञान ले सकते हैं। शायद आप इस एंशिएंट मलयाली भाषा को ना समझ पाए तो उनको अपने भाषाओं में यहाँ कन्वर्ट करके आपके लिए प्रस्तुत किया गया है इंग्लिश। थैंक यू। दिस इज आयुर्वेदा, दिस इज द मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बहुत कुछ है इस सब्जेक्ट में। तो अब हम बढ़ रहे हैं अपने एनाटॉमी लैब में, जिसके ऊपर हमेशा से मैं काम करता आ गया हूँ। इंसानी शरीर को तो बहुत बार देखा होगा और इंसानी कंकाल को भी आपने फॉर्मुलेटेड रूप में जरूर देखा होगा। आज कई सारे कंकालों को एक साथ दिखाता हूँ। These are anatomy lab. The anatomy is also, you already told that the first year we have to study the anatomy and physiology. Okay, you can see the bones and the skeleton. So this is the male and this is the female. Yeah. This is female and this is male. तो आप यहाँ पे एक नर कंकाल और एक मादा कंकाल को आप सामने देख रहे हैं। And this is original human skull bones. No, all the bones are original. Those are तो formulated. These bones. हाँ, I understand. तो आप यहाँ जो देख सकते हैं, can I touch them? Can I touch them? Yeah. तो आप यहाँ जो देख सकते हैं, जितने भी कंकाल हैं, ये सब इंसानों की ही है और ये सब प्रिजर्व करके बहुत पहले से रखे गए हैं। ये सामने आप ये जो देख रहे हो, दिस इज फीमर और इट कैन बी ह्यूमरस। यहाँ पे आप अल्ना या रेडियस को देख सकते हैं, अल्ना रेडियस को देख सकते हैं। ये नीचे ओरिजिनल आपके सामने मैं मैंडिबल दिखा रहा हूँ। दिस इज द लोअर जॉ बोन जो ऐसे ऐसे हिलता है। ओके, एंड दिस देयर यू कैन सी द क्लाविकल। ये यहाँ कॉलर बोन इसी को कहते हैं। दिस इज द कॉलर बोन, मैक्सिला मैंडिबल। ये आपकी यहाँ वाली हड्डी होती है जिसे हम स्कैपुला कहते हैं। दिस इज द स्कैपुला अलाइंड विद द ह्यूमरस एंड द क्लाविकल हियर। यहाँ आप देख सकते हो, दिस इज द फ्रंटल पार्ट, ये मैक्सिला है। ये दो हिस्से में होती है और इसी को तालू कहते हैं। दिस इज द पैलेट, ये पैलेट होती है और ये इसमें देखो दांत लगे भी हुए हैं, निकाले भी नहीं हुए हैं। ये इंसान की वो जो दांत है वो निकाली भी नहीं गई है। इसको नीचे से तालू कहते हैं और ये मैक्सिला पूरी हड्डी होती है, दो साइड से होता है। दिस इज द जाइगोमैटिक बोन, दिस इज द नेजल बोन। ये अंदर से इंफीरियर नेजल कॉन्की होती है और ये फिर ब्रेन में इनर्वेट कर जाता है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये हमारी खोपड़ी है। दिस इज द क्रेनियल बोन और इसके सामने ये जो धारगे देख रहे हैं ना, इसी को फाइब्रस सूचर्स कहा जाता है। एक ऐसा जोड़ जो शरीर में टूट नहीं सकती। दे आर इमूवेबल सूचर्स, दीज सूचर्स आर नॉट मूवेबल। खोपड़ा यहाँ से क्रैक कर जाएगा लेकिन ये जल्दी नहीं खुलते। तो इसको सर अब सवाल ये होगा कि सर इसको कैसे खोला गया? तो बड़ी मशक्कत के साथ इसे खोला गया होगा रिसर्चर्स के द्वारा, एनाटॉमिस्ट के द्वारा। ऐसे नॉर्मल एक्सीडेंट में ऐसे नहीं खुलेगा ये, बिकॉज दीज आर इमूवेबल जॉइंट्स, जिसे ही हम फाइब्रस जॉइंट्स कहते हैं। और यहाँ देखिए बहुत ही एक ऐसी चीज जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, रियल मैलियस इंकस एंड स्टेप्स। कान की वो तीन छोटी हड्डियां जो हैमर शेप्ड, एनविल शेप्ड और स्टिरअप शेप्ड होती है। ये कान की तीन हड्डियां कितनी छोटी हैं देखिए आप। All these bones are dissected by us. ओह, कितनी खास बात है कि ये सारी हड्डियां ना कहीं और से इकट्ठा करके नहीं लाई गई। सर का कहना है कि इसी हॉस्पिटल में यहीं के ही सारे एनाटॉमिस्ट के द्वारा ये खुद से निकाला गया हड्डी है। मतलब those who are no more. The cadavers. Cadavers, yeah. And ये आपकी स्टर्नम है, उरास्ती फ्लैट बोन कहते हैं, बीचों बीच यही होती है। इसके पीछे ही आपकी हृदय प्रोटेक्टेड रहती है। ये आप इसका थोड़ा बेसल पार्ट देख सकते हो। दिस इज द बेसल पार्ट। और ये आपके देख रहे हो, ये सब आपकी फीमर है, जांग की हड्डी। बड़ी बड़ी ये फीमर है, जांग की हड्डी है। और यहाँ आपको हाथ पैर के उंगलियों की हड्डियां मिल जाएंगी, कार्पल्स और फैलेंजेस मिल जाएंगे। आपको यहाँ वर्टिब्रल बोन्स मिल जाएंगे जिससे आपकी मेरुदंड बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ आपको दिख रही हैं पसलियां, ये है रिब्स। ये पसलियां हैं जो पीछे से जुड़ के ऐसे सामने आके जुड़ती हैं। पीछे से आती हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम से और सामने आके स्टर्नम के फैसेट से जुड़ जाता है।
सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये सारे जितने भी स्कल्स और जितने भी आप एनाटॉमिकल बोन्स आप देख रहे हो इंसान के शरीर की, ये सब इसी हॉस्पिटल में आए पेशेंट्स का निकाला गया है। मतलब पेशेंट आए तो निकाल के उन्हें मार नहीं दिया गया। वंस दे कुडंट सर्वाइव देन फ्रॉम द कैडेवर और द डेड बॉडी दैट हैज बीन टेकन ऑफ, जब उनका कोई वारिस नहीं आके ले गया तो फिर वो आ ही जाती है। और ये पूरा आपके सामने कंकाल देख रहे हो। अब मैं कुछ और चीजें भी दिखाता हूँ। अब शारीरिक ग्रंथियों को, ऑर्गन्स को भी आप थोड़ा सा देखो। दिस इज द रियल बेबीज। तो ये स्टोर करके रखा गया है। इंसानी बच्चे हैं और ये इंसान ही है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक में डुबाया रखा है। वो बच्चा जो सरवाइव नहीं कर पाया उसको फॉर्मेलिन में डुबो के यहाँ रखा गया है। आप देख सकते हो विथ डिफरेंट एनोमलीज। कुछ ऐसी बीमारियां थी कि वो ज्यादा दिन जी नहीं पाए, जिसके वजह से इनको फॉर्मेलिन में रखा गया है। हियर यू कैन सी ब्रेनल कंट्यूजन, जिसकी वजह से ये बच नहीं पाया। ही हैव, आप देख सकते हो, अगर थोड़ा ढंग से देखोगे तो बीचों बीच इनको काट के बचाने की कोशिश की गई है, लेकिन नहीं बच पाए हैं। ये तो काफी बड़ा होके नहीं जी पाया है। दिस इज द सेरिब्रम, ये आपका ब्रेन है, एग्जैक्ट ब्रेन है। बेस ऑफ द सेरिब्रम है, यहाँ आपको पूरा ब्रेन आपको दिख रहा है। नीचे आपको स्प्लीन, प्लीहा दिख रही है। दिस इज द प्लीहा स्प्लीन विच इज कॉल्ड द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। और यही आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। जितनी भी लाल रक्त कणिकाएं हैं आके यही मरती हैं। हाँ, दिस इज द नॉर्मल स्प्लीन एंड वंस इट इज हेपेटासाइज्ड, मींस वंस इट इन्फ्लैम्स, दिस इज द कंडीशन। जब वो बड़ा हो जाता है, लीवर के पास ही प्लीहा है, तो व्हेन लिवर इन्फ्लैम्स ना, that is hepatomegaly. If the spleen gets inflamed, तो then the condition is hepatosplenomegaly. ये वो स्प्लीनोमेगाली का केस है। अगर यकृत सूजा रहे, लिवर सूजा रहे तो हेपेटोमेगाली हो जाता है। तो ये सारे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फेस की सजाइटल सेक्शन, एक तरफ ये कान दिख रहा है आपको, ये जो कान आपको दिख रहा है, ये इंसान का कान, तो ये वाला हिस्सा आपको देखा गया, सजाइटल सेक्शन, साइड वाला हिस्सा। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को दिखाया गया है। ये किडनी है, ये आपके वृक्क है, ये दोनों साइड के किडनी एक साथ दिखा दिए गए, ये अलग अलग किडनी आपको दिखाया गया। फिर इसको काट की किडनी के अंदर को देखोगे तो आपको मेडुलरी पिरामिड्स, बीच में कैलिक्स, हाइलम दिखेगा। ये लेफ्ट किडनी है। बहुत अच्छी चीज आपके सामने, जिस मेरुदंड के बीचों बीच जो स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा होता है, ये आपके सामने वो स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल नर्व्स जाते हैं, वो नर्व फाइबर्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, जिससे सीकम, कोलोन और रेक्टम के नाम से हम जाते हैं। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये है आपकी छोटी आंत। छोटी आंत है, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये ऊपर में जितने भी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको हृदय दिख रहा है। हृदय में कोरोनरी आर्टरी को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पे आप अग्नाशय यानी पैनक्रियास को देख सकते हो। वृक्क के अंदर जब कैंसर हो जाए तो कैसा हो जाता है आप देख सकते हो। किडनी कैंसर विथ पेरिरीनल फैट, ये अग्नाशय, ये अग्नाशय। तो डिफरेंट केसेस हैं जिसमें व्यक्ति बच नहीं पाए और उसके पीछे कोई ना कोई अनोमली तो था ही। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हार्ट है, यहाँ पे आप फेफड़े देख सकते हो, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। ये आपकी वृषण, मर्दों में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज टेस्टिस। ये आप टेस्टिस यहाँ देख सकते हो। ये ब्रेस्ट कैंसर के दौरान ब्रेस्ट का एक सेक्शन काट के निकाला गया है जिसमें मायोमा हो चुका है। दिस इज द नॉर्मल यूट्रस और यहाँ पे फाइब्रॉइड यूट्रस। तो ये मादा प्रजनन अंग है। जब इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस इज नॉन कैंसरस, याद रखना, फाइब्रॉइड होना इज नॉट कैंसर। यूट्रस में जब फाइब्रॉइड हो जाता है तब यूट्रस की क्या स्थिति होती है आप यहाँ देख सकते हो। दिस इज यूट्रस विद फाइब्रॉइड, दिस इज यूट्रस विद फाइब्रॉइड। यहाँ आप फेफड़ों को देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप लंग्स को देखो ढंग से तो आपको लेफ्ट लंग के तीनों सेक्शन दिख जाएंगे, ऊपर हॉरिजॉन्टल और मीडियन, और राइट लंग में आपको दो ही दिखेंगे। तो ये आपके फेफड़े हैं, ये आपकी लिवर छोटी यहाँ पे दिखाई गई है, ये लिवर। सब अच्छी बात ये है कि ऑल दिस सेक्शंस आर ऑफ आवर कॉलेज इटसेल्फ, एवरीथिंग। ये सब हमारे कॉलेज में ही एनाटॉमिस्ट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा निकाला गया है। ये सेरिबेलम है जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, छोटा दिमाग, जो हमारे बॉडी के पोस्चर, जैसे मैं अभी खड़े होकर ऐसे बता भी रहा हूं ना, तो इस पोज को कौन ले रहा है? दिस इज द सेरिबेलम, इट इज मेंटेनिंग इट।
ये आप मूत्राशय यहाँ देख सकते हैं. दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज द स्टमक, दिस इज द लिवर. तो बहुत ही बढ़िया यार आज. और ऊपर ये सारे ऑर्गन्स की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके जनरल मैप्स भी देखे गए हैं. और ये जो टेबल आप देख रहे हो ना, ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये वही टेबल है, ये वही टेबल है जहां एनाटॉमी परफॉर्म की जाती है. इसी टेबल पे एनाटॉमी को परफॉर्म किया जाता है इन हॉस्पिटल्स. अब जो शरीर है हमारा, मर्म शरीर जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी आयुर्वेद भाषा में हर एक शारीरिक अंग का अपना अपना एक नाम है. तो इस मर्म शरीर के कौन कौन से अंग कहाँ हैं ये भी आप देख सकते हो, वीडियो में आपको दिख जाएगी. ये सामने वाला हिस्सा है फ्रंटल पार्ट और ये पिछला वाला हिस्सा है. तो जनरली यहाँ पे आप फोरहेड, फ्रंटल, मैक्सिला और नेक और क्लैविकल के नाम से जानते हो. लेकिन आयुर्वेद में, प्राचीन हमारी इतिहास में या प्राचीन इस विज्ञान में शरीर के अलग अलग अंगों का क्या क्या नाम है. ये फ्रंटल पार्ट है और ये आपका बैक पार्ट. वीडियो में भी आ रहा होगा, आप अच्छे से देखना. अलग अलग यहाँ एक्सरसाइजेस भी बताए गए हैं मसल के लिए, अलग अलग शरीर में जो मांसपेशियां हैं उसके लिए क्या क्या है. एंड ये ऑब्स्टेट्रिक टेबल मतलब जो मासिक धर्म प्रवाह है ना, वो कब आने वाली है, उसी कैलकुलेशन टेबल भी यहाँ पे. अमेजिंग सर, अमेजिंग. सो आप ये मत समझो कि आयुर्वेदा इज ऑल अबाउट भस्मास एंड चूरन एंड लवणस. इट हैज अ फार एस्पेक्ट ऑफ. Now I will show you major part. Okay. So the practical is going on. Okay. The preparatory session. Okay. Medicine preparation. I told you that we have a PG in Rasashastra and Vaisheshika Kalpana. Now we are entering into the Rasashastra and Vaisheshika lab. अब मैं आपको वहां लेके जा रहा हूँ जहाँ लाइव चीजें हो रही हैं, कैसे फॉर्मुलेशंस बनाते हैं आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में, कैसे आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस को बनाते हैं, कैसे डिकॉक्शंस को बनाते हैं, उसके बारे में बातें करें. This is the modern, you already told the pharmacology, the modern science. तो फार्माकोलॉजी इज मॉडर्न साइंस. जो हमारी पुरानी जो जड़ी बूटियां वेद ऋषि जो बनाते थे, वो किन यंत्रों का इस्तेमाल करके बनाते थे. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ These are the प्राचीन यंत्र. प्राचीन यंत्र. ये आप कह सकते हो वो डिशेस है जिसमें ये सबको प्रिपेयर करते हैं. ऐसा नहीं कि किसी कढ़ाई में उठाकर और भूनना चालू कर दिया. दे हैव डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट शेप्स. आप देख सकते हो. These are the different measuring jars. These are the earthen vessels. थर्मोमीटर आप यहाँ देख सकते हो. ये pipettes और burettes देख सकते हो. यहाँ पे आप different types of leaves, जैसे धतूरा आप देख सकते हो जो शिव जी खाते हैं. Tiravira, Iranda. Here we have Gunja. Different महारसा, उपरसा, साधना रसा, धातु वर्ग, शुद्ध वर्ग. These are all the minerals. जिसके साथ प्रिपरेशन. यहाँ vegetable oils है, essential oils है, लवण. सर इसका जरूर पूरा वीडियो लीजिए. तो अब मैं दिखाता हूँ लाइव एक सर हैं जो लाइव आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बना भी रहे हैं. आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ. तो यहाँ जितने भी हमारे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल आर अंडरस्टैंडिंग अपने स्पेशलाइज्ड सर के साथ. तो हियर वी हैव आवर सर. हाय सर. तो आप देख सकते हैं, ही इज टीचिंग हाउ टू मेक एन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन. सर व्हाट आर वी प्रिपेयरिंग? We are preparing one oil. Medicated oil. Medicated oil. Because Windozyme. Windozyme. And the what is where it is used basically? What is it used for? Mainly indicated in rheumatic conditions. अच्छा. So if you are हाँ. So if you are suffering from any rheumatic conditions in your body, this oil is going to create a very बढ़िया वाला effect on your body and it will treat that disease. And you can see these students are learning the same. So are you enjoying the learning of these formulations? Yes. जोर से. Yes. So be proud that you are in the under supervision of such experts. Thank you, sir. It was very nice meeting you and seeing these things. Right. तो यहाँ कुछ पेस्ट लोग बना रहे हैं, आप देख सकते हैं. So what have you prepared? Okay, and they are also preparing something. What are you all preparing? Same they are preparing. तो सर वहाँ सिखा रहे हैं and there they are practicing. Right? Wonderful. So this was our practical formulation lab where Ayurvedic medicines are being formulated.
ये जो टॉर्टोइजेस हैं इनका शेल है, तो कूर्मा परिष्ठा, दिस इज ऑल्सो यूज्ड, आप देख सकते हो, दिस इज द शेल ऑफ अ टॉर्टोइज। और निडारियंस में वी स्टडी कोरल्स, निडारियंस में जिसका कैल्शियम और सिलिका से बनता है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है देखो, एंड दे हैव फॉर्म्ड hard because of deposition of calcium and silica. These are corals, coral reef, original है। You can see the molluscan cell. This is the molluscan cell है। इनमें मोतियों का निर्माण भी हो जाता है कई सालों बाद। यहाँ आप कुछ एलिवेशंस भी, डिप्रेशंस भी देख सकते हो। ये पोर्क्यूपाइन का स्केलेटन है। You can see the conch cell, शंख जिससे बनते हैं। The first surgery. आप इनको देख लीजिए, ये वो हैं जिन्हें जनक कहा जाता है सर्जरी का। ये फोटो तो कहीं मिलने भी नहीं वाला था, सर के कहने से वो कह रहे कि सर आप कभी इस जगह से जुड़े हुए हो, आपको ये वाली तस्वीर तो मैं दिखाता हूं जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। और पहली बार जो हमारे पहले सर्जन हुए जिन्हें सर्जरी का जनक कहा जाता है, वो पहली बार एक सर्जरी परफॉर्म भी कर रहे हैं लाइव। The first surgery which is performed in Ayurveda, as you all know that Google, who is the father of surgery, Sushruta. You can see the Sushruta Acharya. He is doing the surgery which is called nowadays it is called as plastic surgery. This is the rhinoplastic. Rhinoplastic surgery that was done far ahead by Sushruta. And एम्स में आप जाओगे ना तो सुश्रुत, चरक, इनके नाम से अलग अलग डिपार्टमेंट भी बने हुए हैं। के बाद आप सबको समझ में आ गया होगा कि आखिर इतने दिनों से अमित अगर मॉडर्न साइंसेस के बाद इस ट्रेडिशनल साइंसेस पर इतना जोर कस रहा था तो इसके पीछे की वजह क्या थी। अब बारी है अगले जून अटेम्प्ट के लिए अपनी तैयारी को कस लेने की। मार्च के आखिरी हफ्ते के बाद ही नोटिफिकेशन रिलीज हो सकती है कभी भी, तो गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दिस न्यू सब्जेक्ट। इस बार तो हमने 2 ही JRF दिए हैं, अगली बार आप सबको इसकी संख्या और बढ़ानी है क्योंकि इंटरेस्ट ही ऐसा है, हमारी ये शास्त्र ही इतनी लाजवाब है कि इसको छोड़ने का मन नहीं करता। तो सी यू बैक सून ऑन योर चैनल UGC Net Adda 24/7. Stay tuned.